I supervised this research, और जो medical team थी who actually conducted the research under my guidance were these. भी हम कोई cohort study या ट्रीटमेंट इंटरवेंशनल स्टडी कर रहे हैं, जो कि कोहर्ट भी हो सकती है अगर ट्रीटमेंट इंटेंशनल नहीं है, और अगर ट्रीटमेंट हम रैंडमाइज करके इंटेंशनली 2 ग्रुप्स बना लें तो वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बन जाता है. दिस इज द रिक्वायर्ड एनालिसिस व्हिच नीड्स टू बी डन. आपको रिस्क निकालना है, एब्सोल्यूट रिस्क निकालना है, रिस्क रिडक्शन निकालनी है, रिलेटिव रिस्क निकालना है, नंबर्स नीडेड टू ट्रीट निकालने हैं, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी निकाली जा सकती है. वो डिपेंड्स ऑन द मॉडल. लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं ये डेफिनेटली नेसेसरी हैं, क्योंकि इन नंबर्स को एक क्लिनिशियन कंपेयर करके डिफरेंट पेपर्स में डिसाइड करता है कि कौन सी ट्रीटमेंट उसके ग्रुप के लिए ज्यादा इफेक्टिव है. So they all seem a bit scary, if I may use the word. Am I right? लेकिन it's all very easy. मैं आपको उसके साथ साथ लेके चलूंगी. तो this I don't expect you to understand the abstract, क्योंकि abstract तो जब समझ आती है जब आपने बाकी का पेपर पढ़ा हो. So let me request Dr. Naima to read the introduction. Okay. Dengue virus is a flavivirus transmitted by the mosquito vectors Aedes aegypti and Aedes albopictus. Each year, millions of people get infected with dengue virus, and some of them develop potentially serious state of illness, such as dengue shock syndrome and dengue hemorrhagic fever. Both dengue hemorrhagic fever and dengue shock syndrome are आगे से characterized by इसको abbreviations भी पढ़ सकते हैं आसानी के लिए. You don't need to spell it out every time. ठीक है? are characterized by an increased vascular permeability that may lead to hemorrhage within internal organs and leakage of plasma into the tissues. Circulatory failure and death can also occur in severe cases. Approximately 5 to 30% of the patients diagnosed with dengue fever may develop DSS, and the mortality in DSS is 50 times higher than the dengue patients who don't develop DSS. The first outbreak of dengue fever in Pakistan happened in 1994. Since then, dengue virus has become endemic to Pakistan, causing infections throughout the year, particularly since 2005. It is associated with a seasonal peak, mainly in the post-monsoon period, that is July to November. बस. अच्छा, अब यहाँ तक. I would like you to take 2 minutes to tell me, इसमें faculty, teachers, हम सारे यहाँ पे students हैं, to tell me कि मैंने these pieces of information, why have I used these pieces of information for introduction part. Just 1 minute, think about it. Your time starts now. मैडम, जब भी हम इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, हमें सबसे पहले अपनी ऑडियंस को हुक करना होता है. So by giving this information, quoting facts and figures and telling numbers, we can tell the reader how scary the ground situation is, so that he be compelled to read the rest of what we have to say. Good, good. Thank you. Any more points? So that is basically it. What Huma says कि हमने title की relevance बतानी है. ये title क्यों relevant है? कि जी डेंगी तो सीरियस चीज नहीं है, लेकिन उसके साथ जो DHF और DSS होता है, और वो 5 to 30% ऑफ पेशेंट्स डेवलप कर लेते हैं, और उसमें फिर मोर्टेलिटी जो है वो double है as compared to hemorrhagic, the simple the dengue fever. So that is something to consider. And secondly, Pakistan leads the world in many unfortunate things, including corruption and as well as dengue fever, because we have a lot of it. And so we have experience with it. So the international world can learn from us. That is why, even though it's rare कि हम international paper में पाकिस्तान के stats का जिक्र करें,
लेकिन उससे हम ये बताना चाहते हैं कि वी हैव हैड सच अ लॉन्ग एक्सपीरियंस बैटलिंग दिस डिजीज दैट वी कैन प्रोवाइड सम यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द वर्ल्ड. सो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन. और अब हम इंट्रोडक्शन के बाद हमें फिर बताना होता है थोड़ी सी जो टाइटल के अंदर चीजें दी हुई हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन. डेंगू के बारे में हम बता चुके, और टाइटल के कीवर्ड्स कौन हैं एक एक करके बताओ. टाइटल. So, mast cells are well known for their role as regulators of vascular integrity, tone, and function. They line blood vessels that produce many vasoactive mediators that induce vascular permeability. Some of these are pre-stored and can act nearly instantaneously on vascular endothelium, including tumor necrosis factor, TNF, proteases, and heparin. Other de novo synthesized vasoactive factors include leukotrienes, prostaglandins, vascular endothelial growth factors such as VEGF and TNF. Activation of mast cells derived factors promotes the breakdown of junctions that are present between endothelial cells. This leads to leakage of plasma, resulting in edema inside the tissues. High levels of vasoactive factors produced by mast cells have been associated with severe disease in dengue infection. Montelukast अच्छा, is इसमें a can somebody tell me de novo synthesis क्या होता है? Other de novo synthesized. You can look up your internet, but I want it to come from you. Okay, you should always highlight your ears for a new term that you come across. So it says other de novo synthesized vasoactive factors. What does de novo synthesized mean? मैडम उस जगह पे लोकली सिंथेसाइज्ड उसी प्लेस पे. Have you looked it up? कि तुक्के मार रही हो? नहीं मुझे पता है. ठीक है. de novo ठीक है. synthesis. और आप कह रहे हो कि लोकली सिंथेसाइज्ड, आपने भी यही कहा. अच्छा, तो बेसिकली डीनो, हाँ कमल, नाइमा भी कुछ कह रही थी. Newly synthesized. न्यूली Newly सिंथेसाइज्ड. Yes, I basically. would just like to give an example Yeah. कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं. Hmm. We obtain a lot of cholesterol from dietary sources, but at the same time, the hepatocytes exhibit a mechanism which is called the de novo synthesis of cholesterol, which means that the hepatocytes are themselves synthesizing cholesterol from Yeah. other basic molecules. Very basic molecules, not extracting it from partially degraded cholesterol. हाँ, ठीक है. Good. So means के ये जो mast cells हैं, they have extensive genetic and cellular structures to use basic molecules and produce lots of leukotrienes, prostaglandins, VEGF and TNF. तो ये बहुत एक्टिव जेनेटिक एक्सप्रेशन वाइज बड़े एक्टिव सेल्स हैं. और ये तमाम जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं केमिकल्स, दे इवेंचुअली cause the endothelial cells junctions between the endothelial cells to loosen and fluid to come out. So it is a kind of edema. जिसके अंदर कोई स्टार्लिंग फैक्टर कोई इन्वॉल्व है इसमें? ये एक्चुअली फिजिकल है. इसमें कोई स्टार्लिंग फैक्टर जो हमने पढ़े होते हैं एडीमा के, उनमें से ऐसा कोई इन्वॉल्व नहीं है. जी हुमा. Maybe that coefficient which is dependent on capillary permeability, we can say that. Ji, madam, I had a discussion with a person who runs an ICU in CMH, and my father was admitted with dengue. And what he believes is that when the phase of capillary leak is taking place, at that time, a lot of plasma leaks out into the extracellular space, and the plasma proteins which move out start taking the on pressure from the extracellular spaces, causing more fluid to move out. हाँ, I agree with that. कि वो secondarily फिर उसमें मजीद फैक्टर्स, स्टार्लिंग फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं. उसके अंदर आपको याद है एक KF भी होता है, जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, जिसके अंदर Filtration coefficient. हाँ, जिसके अंदर कैपिलरी परमेबिलिटी भी एक फैक्टर है. सो इनिशियली इट्स ओनली द कैपिलरी परमेबिलिटी ड्यू टू द फिजिकल डैमेज टू द जंक्शंस, एंड लेटर ऑन लाइक हुमा सेड कि एज द प्रोटीन स्टार्ट लीकिंग आउट फ्लूइड, तो वो लिम्फेटिक्स ले जाते हैं बाय एंड लार्ज. लेकिन जो लार्ज प्रोटीन्स रह जाती हैं वो फिर उसके कौन से वाला फैक्टर रेज होगा फिर? अदर एनी स्टूडेंट?
फरीना? Oncotic pressure? हाँ, आपका ये interstitial fluid oncotic pressure raise होगा. So anyways, end result is tissues are swelling up और आपकी बॉडी में तो है लेकिन आपको सर्कुलेटरी शॉक की तरफ आप जा रहे हैं. That is the situation. Now Montelukast क्या करता है? Let's Huma, can you give this a read about Montelukast? Montelukast is a cystenyl leukotriene receptor antagonist traditionally used in the treatment of asthma. Leukotrienes are important mediators in the vascular leakage produced due to mast cell activation in dengue virus infection. Blocking the leukotrienes receptors with Montelukast may help to prevent the vascular leakage and frequency of dengue shock syndrome. A recent study showed that administration of Montelukast prevented vascular leakage in an animal model of dengue. The current study seeks to further investigate the role of Montelukast as an effective drug, which might prevent occurrence of dengue shock syndrome in dengue patients in a randomized controlled trial study design. मैडम रैशनैल से हटके मेरे जहन में एक बात आई है रैशनैल से हटके मेरे जहन में एक बात आई है और वो ये कि ऑथर्स आर बीइंग वेरी सेफ एंड दे आर टेलिंग that this is not a new drug which is being used in the randomized controlled trial. It is already being used in humans, it is approved and it is safe for usage. That was the trick we used. और साथ ही Because FDA approvals लेना बहुत मुश्किल बात होती है. एनिमल मॉडल का भी बता दिया. Yes, that is the second evidence. एनिमल मॉडल का भी बता दिया. हाँ, बिल्कुल. बिल्कुल. कि ह्यूमंस में काम नहीं हुआ हुआ पहले तो एनिमल मॉडल पे हुआ हुआ. बिल्कुल. So जो हमें यूजुअली रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स की परमिशंस लेनी पड़ती हैं उसमें कोई एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली आई माई सेल्फ डोंट फील एथिकली सेफ इन दैट फॉर द पेशेंट कि इसके पता नहीं क्या साइड इफेक्ट्स हों. लेकिन अ ड्रग विच हैज बीन इंड्यूस्ड फॉर मेनी ईयर्स फॉर सम अदर थिंग तो उसका प्रिटी मच पता चल जाता है आपको हाउ हार्मफुल इट इज. 5 दिन के लिए मजीद देना वी नो वुड नॉट कॉज एनी इश्यूज. सो दिस इज एन आइडिया. इफ यू वांट टू डू अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इट इज बेस्ट टू डू जिसमें एनिमल स्टडीज ऑलरेडी हो गई हों एंड इट इज बेस्ट टू डू ऑन अ ड्रग जिसका which might have been used for some other thing. So उसकी सेफ्टी स्टडीज वगैरह हो चुकी हैं. Yes. जी. Okay. Materials and methods. After obtaining approval from Institutional Review Board, King Edward Medical University, Lahore, an open-label parallel randomized controlled trial was carried out in dengue wards of the अच्छा, Department of Medicine. I want you to keep thinking about these words. Open label, parallel, and randomized. और हाँ, open label का मतलब होता है का opposite है blinded, double blinded. Parallel का opposite होता है crossover. और randomized अगर randomized लेकिन होना ही होता है. जो चीज randomized नहीं है वो RCT नहीं हो सकती. तो randomized तो होना ही होता है लेकिन उसके डिस्क्रिप्शन में आपने 2 और वर्ड्स डालने होते हैं. एक ओपन लेबल या डबल ब्लाइंड, इट इज आइदर ऑफ द टू. एक पैरेलल और क्रॉसओवर, इट इज आइदर ऑफ द टू. We did an open label parallel randomized control trial. So let's see how it goes. So, randomized control trial was carried out in the dengue wards of the Department of Medicine, New Hospital, Lahore, from August 2014 to February 2015. The trial is registered at the Renal Disease History of No, is registered at www. .registry.com with the unique ID number research registry 3251. A यहाँ पे भी total रुक of जाए. ये भी मैं आप लोगों को क्लूज बता रही हूँ. There are multiple research registries which are recognized. People often only know about the clinical registry of वो जो USA की clinical registry है clinicaltrials.gov. उसमें आपको ट्रायल स्टार्ट करने से पहले रजिस्टर कराना होता है और बड़ी लंबी चौड़ी उसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं. कई लोग नहीं कराते. उस बेसिस पे कुछ ऐसी भी इंटरनेशनल रजिस्ट्रीज हैं जो कहते हैं कि आप हमें इंफॉर्मेशन जरूर दें अपने इस क्लिनिकल ट्रायल की इवन इफ यू हैव ऑलरेडी कंडक्टेड इट. सो ये जो रिसर्च रजिस्ट्री है ना, आप उस पे पब्लिकेशन के टाइम पे भी रजिस्ट्री करा सकते हैं.
इन्होंने, जो मेरे कॉलीग्स थे, दे हैड एक्चुअली partially collected the data before they came to me and said we want to do it properly, so I guided them. और उन्होंने रिसर्च रजिस्ट्री इसको रजिस्टर नहीं कराया हुआ था. आपको पता है इंडिया की भी एक रिसर्च रजिस्ट्री है. ये रिसर्च रजिस्ट्री यूरोप की है एक, जो clinicaltrials.com है, दैट इज जस्ट वन ऑफ द रजिस्ट्री जिसकी बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है. लेकिन इसके अंदर इस रिसर्च रजिस्ट्री और आपका जो पेपर होता है उसको सिर्फ ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपने किसी रिसर्च रजिस्ट्री में अपने आप को रजिस्टर कराया हो. तो इसको आप लोग भी, आप में से जो, और वो इनकरेज करते हैं कि इवन अगर वो आरसीटी नहीं है, कोहॉर्ट है या कोई और स्टडी डिजाइन भी है, आप उसको भी रजिस्टर करा लें. आपको एक रिसर्च रजिस्ट्री का लेबल मिल जाएगा जो कि बाद में आप अपनी पब्लिकेशन में यूज कर सकते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू पॉज एट दिस पॉइंट. अच्छा, 10 मिनट्स के बाद ये मैंने ना, आई मेक अनदर आईडी, सो एंड शेयर इट, क्योंकि अनदर लिंक एंड शेयर इट, क्योंकि मैंने इसको 2 घंटे का नहीं किया था जो मैंने पहले बनाई थी. सो डोंट पैनिक, देयर माइट बी अ 5 मिनट्स ब्रेक फॉर यू टू गेट टी और समथिंग. तो लेकिन वी स्टिल हैव 10 मिनट्स, सो कंटिन्यू. अब पहले क्या जिक्र हुआ, कहाँ हुआ, एथिकल बोर्ड, ड्यूरेशन क्या थी, और उस स्टडी डिजाइन क्या था. और आरसीटी में तो लाजमी रजिस्ट्री करनी होती है, बाकी डिजाइन्स में ऑप्शनल होती है. कोहॉर्ट्स, केस कंट्रोल, इट्स ऑप्शनल इफ यू वांट टू गेट देम रजिस्टर्ड. आरसीटीज को रजिस्टर कराना जरूरी होता है. अगर आपके पास डाटा पड़ा हुआ है और आपने स्टार्ट से पहले नहीं रजिस्टर कराया, तो ये रिसर्च रजिस्ट्री .com जो है, ये ऑप्शन देती है कि आप इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रायल रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हैं. ओके, कंटिन्यू नाइमा. 13 to 65 years old of either gender who were diagnosed on the basis of WHO dengue guidelines, comprehensive guidelines for prevention and control of dengue and dengue रेफरेंसेस hemorrhagic बेशक ना fever. पढ़ो आप, रेफरेंसेस बेशक ना पढ़ो आप, ठीक है. Okay. In accordance with these guidelines, the patients were diagnosed with dengue fever if they had high-grade fever for at least 3 days with 2 or more of the following symptoms: rash, headache, arthralgia, myalgia, retroorbital pain, hemorrhagic manifestations, leukopenia, and thrombocytopenia. The diagnosis was confirmed serologically by measuring serum levels of IgM or NS1 using enzyme-linked immunosorbent assay kits. Dengue hemorrhagic fever was labeled if dengue patients had platelet counts of less than and equal to 100. Any evidence of bleeding and plasma leakage manifesting as either hematocrit change of more than 20%, fluid accumulation detected clinically or radiologically in the form of pleural effusion or ascites. DSS was declared when there were signs of circulatory failure in patients with DHF. Signs included weak and rapid pulse with narrow pulse pressure of less than 20 millimeter of mercury or hypotension for age. Okay, so what are we doing here? Methodology में हम, आपने नोट किया होगा, क्योंकि ये methodology is based on a treatment and disease outcomes. तो how we are diagnosing it, it's really important कि हम ना सिर्फ उसका, हमने हर चीज को operational definitions define कर दी है methodology में, कि हम किसको डेंगी फीवर कह रहे हैं. ये डेंगी फीवर तो सारों का ही है. हमारे 2 ग्रुप्स हैं, दोनों डेंगी फीवर के हैं. एक ग्रुप को डेंगी फीवर को हमने मॉन्टिक्यूलास्ट देना है और एक ग्रुप को लुकास्ट नहीं देना. तो अब, और हमने देखना है कि दोनों ग्रुप्स में कितनों को हेमरेजिक फीवर होता है, राइट. सो वी हैव 3 वेरिएबल्स. कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे पास हुए? रिस्क अगर हम उस तरह पढ़े जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टडी डिजाइन्स, के स्टडी डिजाइन्स में अमूमन 3 चीजें होती हैं. रिस्क होता है और आउटकम होता है और ग्रुप्स होते हैं. अब रिस्क क्या है इस स्टडी में और आउटकम क्या है? एंड अब टेक योर चांसेस के 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है. ये है मॉन्टिलुकास्ट प्लस और ये है मॉन्टिलुकास्ट माइनस. ये नजर आ रहा है कि नहीं? और दोनों डेंगी हैं, ठीक है, दोनों डेंगी हैं. इसको मैं मॉन्टिलुकास्ट दे रही हूँ इन पेशेंट्स को,
और इन पेशेंट्स को मैं मोंटेलुकास नहीं दे रही, बेसिक लाइफ सपोर्ट जो कि जनरल ट्रीटमेंट है वो दोनों को मिल रही है। ये एक और क्लू है। हम ऐसे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं कर सकते जिसमें हम पेशेंट्स को डिनाई करें ट्रीटमेंट। हम प्योर प्लस प्लेसिबो के नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्लेसिबो कंट्रोल्ड नहीं है, ये सिंपली रैंडम कंट्रोल्ड। प्लेसिबो कंट्रोल्ड हमने पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा है इसके, जो हमने शुरू में लेबलिंग की थी। लेट मी गो बैक, वी डिजाइंड या हमने प्लेसिबो कंट्रोल्ड का जिक्र नहीं किया क्योंकि इसमें हम प्लेसिबो पे नहीं जा रहे, दोनों को ट्रीटमेंट मिल रही है, लेकिन एक को स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिल रही है विच इज विदाउट मोंटेलुकास्ट, लेकिन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट मिल रही है which is like lots of fluids and anti-inflammatories and what not जो कि देते हैं डेंगू। दूसरा जो ग्रुप है उसको स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी मिल रही है और साथ मोंटेलुकास्ट भी मिल रही है। इन दोनों ग्रुप्स को हमने हॉस्पिटल में 1-2 हफ्ते देखा, फॉलो किया। हमने देखा कि इस ग्रुप में से कितनों को हेमरेजिक फीवर या शॉक सिंड्रोम होता है, यानी उनकी वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसमें से कितने ग्रुप को इस ग्रुप में से कितनों को हेमरेजिक फीवर होता है या डेंगी शॉक सिंड्रोम होता है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट द आइडिया इज। ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है ये आरसीटी का, इसी ये बनाना होता है इसी को। तो आप देखते हैं कि अगर हमारा सैंपल साइज 200 आया था तो हमने असेस फॉर एलिजिबिलिटी 250 पेशेंट्स को किया, मीनिंग के बस जनरली डेंगू के पेशेंट्स हम रिक्रूट करते थे। फिर हमने देखा कि हमारा एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो मैंने ऊपर बताई थी वर्ल्ड WHO की, ठीक है। फिर बाद में हमने एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लेकिन रखा हुआ था कि रीनल प्रोफाइल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, या जो बाय द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट शॉक में ऑलरेडी चले गए हैं। उस बेसिस से आपके आउट ऑफ 250 50 निकल गए और 200 रह गए। तो यूजुअली हमेशा सैम्पलिंग आपके एक्चुअल सैंपल साइज से आपको कुछ ज्यादा ही करनी पड़ती है, किसी न किसी वजह से लोग निकल जाते हैं। अब रैंडमाइजेशन 200 डेंगू के पेशेंट्स आपके पास आ गए। अब आपने उन सब के नाम एक पर्ची पे लिखने हैं और एक जार में डाल के हिला के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, दैट इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन विच इज डन इन द क्लासिकल वे फिजिकली। आजकल ये भी होता है कि आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स हैं कि आप सब सीरियल नंबर्स लिख दो ABCDE या फिर 1 2 3 4 5 और उसको आप रैंडमाइजेशन करके 2 ग्रुप्स बना लो। तो एक ग्रुप होगा 1 5 7 12 32, यानी जो भी नंबर्स आपने असाइन किए हुए हैं उनको, और बाकी के दूसरे ग्रुप में होंगे। आपने पहले से पता होगा ग्रुप ए जो है मोंटेलुकास्ट वाला है और ग्रुप बी जो है वो जनरल सपोर्टिव ट्रीटमेंट वाला है। हॉस्पिटल में ही है तो इसलिए नन वर लॉस्ट टू फॉलो अप, या तो वो जिंदा रह गए, डेंगू फीवर ही था, या वो मर गए DSS से। तो इन आइदर केस हमारे पास डाटा था। और ये भी मैं आपको बताऊं बेटे, कोहॉर्ट स्टडी जिसमें आपको फॉलो करना होता है पेशेंट को, और RCT बेस्ट इमरजेंसी मेडिसिन में होती है, गायनी ऑप्स में होती है, जैसे नाइमा आप कर रहे हो कि ज़ाहिर जो सेकंड ट्राइमेस्टर की औरत है उसने तो बच्चा पैदा करने आना ही आना है, राइट। और तीसरा सर्जरीज में अगर आप पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम्स देख रहे हो हीलिंग के, तो जिस पेशेंट ने सर्जरी कराई है उसने 5-6 दिनों में उसने अगर वापस आना है टांके निकलवाने या समथिंग लाइक दैट, और आपने वूंड हीलिंग के कोई पैरामीटर्स देख रहे हैं, तो ये 3-4 सिचुएशंस हैं जिसमें कोहॉर्ट स्टडीज बहुत आसान होती है क्योंकि पेशेंट ने आना ही आना होता है। हाँ, जो बाहर के मुल्कों में जैसे बहुत बड़े बड़े ट्रायल्स होते हैं क्रॉनिक डिजीजेस पे, वो उसमें अमूमन पेशेंट्स आर लॉस्ट टू फॉलो अप, वो इंटरेस्ट लूज कर लेते हैं या वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना छोड़ देते हैं, सो फोर्थ एंड सो ऑन। जी कमल, यू कैन आस्क। मैडम मुझे ये पूछना था, एक क्वेश्चन मेरे ध्यान में आया था, जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होता है जब हम सैम्पलिंग कर रहे होते हैं, हमने तभी उनको एक्सक्लूड करना होता है या हमने सैंपल गैदर करने के बाद उसमें से उनको एक्सक्लूड करना होता है? देखो better. यहाँ पे सैम्पलिंग मुकम्मल हुई इस रैंडमाइजेशन की स्टेज पे, यानी उसके फौरन बाद हमने रैंडमाइज कर लिया।
ये इनिशियल असेसमेंट फॉर एलिजिबिलिटी है, जिसमें जो भी डेंगू का पेशेंट आया हमने पकड़ लिया इंक्लूजन क्राइटेरिया की बेस पर, और फिर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया की बेस पर एक और दफा देखा कि इनमें से कितने हैं जो कि हमने निकालने हैं। तो ये एक्चुअली जरा तो फिगर हो गए। ये भी हो सकता था कि हमें 60 निकाल देते फिर हमें 10 और रिक्रूट करने पड़ते, क्योंकि हमारा कैलकुलेटेड सैंपल साइज 20 था। तो एक्चुअली आपकी जो सैम्पलिंग है ये अब मुकम्मल हुई है इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया को अप्लाई करने के बाद। अगर ये रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है तो वो हमने रैंडमाइजेशन की, अगर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है तो आप आगे प्रोसीड कर लेते हो। ठीक ओके, है। थैंक यू। So I hope that answers your question, and we will move forward. Now we'll go to the, ये सारा हमने कर लिया। आप 3 किस्म के हम डाटा क्या कलेक्ट कर रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंसी, कितने लोग डीएसएस या डीएचएफ में गए, एक चीज। और हम क्या डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हम उनका ल्यूकोसाइट काउंट, प्लेटलेट काउंट और हिमाटोक्रिट डेली बेसिस पे हर पेशेंट का फॉलो कर रहे हैं। वो वाला ग्रुप जो मॉन्टिल्यूकास्ट ले रहा है एज वेल एज वो वाला ग्रुप जो मॉन्टिल्यूकास्ट नहीं ले रहा, दोनों का। सो दिस इज द डाटा वी आर कलेक्टिंग। ऐसे कितने लिखते हैं द डाटा वाज कलेक्टेड? कोई नहीं लिखता? अभी लिखते हैं मेरे ख्याल में। मैडम I लिखा guess करते थे पहले लिखते थे। हाँ पहले हाँ लिखा करते थे, तो एक दफा डॉक्टर केपी लोन ने हमें करेक्ट किया था, हाँ। उसके बाद में इसका लिखा। सिंगुलर क्या होता है, इसका सिंगुलर क्या होता है? डेटम। 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 हाँ, लेकिन कभी भी एक पॉइंट तो हमने जमा नहीं करना होता, तो डेटा इज अ प्लूरल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं रिसर्च पेपर्स में नोट करने की। डेटा वर कलेक्टेड। ओके, चलो जी आगे चलो नाइमा। the data were collected and analyzed using SPSS variant 23. The हम्म quantitative variables such as age, serum, AST, ALT were shown as mean standard deviation. On the हम्म। other hand, the qualitative variables such as shock and gender from each group were shown as simple frequencies and percentages. तो अब ये है, अब हमारे एनालिटिकल स्टैट, उसमें 3 चीजें हमने यूज की थी इस पेपर में। नंबर 1 बाइनरी लॉजिस्टिक। पढ़ो नाइमा, सिर्फ बाइनरी binary लॉजिस्टिक का पढ़ना। Okay, a binary logistic regression analysis was carried out to assess the effects of Montelukast treatment on onset of DSS after adjusting for gender, age, white cell count, platelet count, hematocrit, serum ALT, and AST. ये एक Furthermore, हो गया, ये एक चीज हो गई कि हमने सिंपली इसमें लॉजिस्टिक बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में करते हैं कि अगर किसी चीज का यस या नो आंसर है, यानी इस केस में डेंगी डीएसएस हुआ या नहीं हुआ, और उसमें फैक्टर है गिविंग मॉन्टिक्यूलास्ट, ठीक है। लेकिन जो और भी बड़े फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं किसी बंदे को डीएसएस में जाने में, हो सकता है उसको ऑलरेडी वाइट सेल काउंट कम हो, ऑलरेडी प्लेटलेट कम हो, हेमाटोक्रिट कम हो, या उसके एंजाइम्स ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड हो व्हिच पॉइंट टू अ वेरी बैड लिवर फंक्शनिंग, जिसकी वजह से विटामिन के नहीं बनेगी, जिसकी वजह से अगेन क्लॉटिंग अफेक्ट होगी। तो ये सारे फैक्टर भी तो वैस्कुलर परमेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। एग्रीड जी है ना? जी तो इसलिए हमें एक सिंपल टी टेस्ट काफी नहीं है, या सिंपल काई स्क्वायर काफी नहीं है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डीएसएस कंपेयर कर ली दोनों ग्रुप्स, वो तो आप कर लोगे। लेकिन हमें एक ऐसा टेस्ट चाहिए विच adjusts for the other factors which can also cause the same outcome, और वो है बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये इन सब के ऊपर मैं आपके क्लास लूंगी। जी जी बेटे। मैडम ये जो और चीजें कॉज कर सकती हैं, तो क्या ये कन्फाउंडिंग फैक्टर्स हैं बिल्कुल, या इनको नहीं? क्या नहीं, इनको बिल्कुल ये कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं। ये वो कंफाउंडिंग फैक्टर्स हैं जिनको, अब कंफाउंडर्स क्या होते हैं जो आपके आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं, राइट? कंफाउंडर्स को हम 3 स्टेजेस पे डील करते हैं। पहली स्टेज इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में कोशिश करते हैं कि दोनों ग्रुप्स जितने सिमिलर हो सकते हैं उतना उनको सिमिलर कर दें, यानी एज उनकी तकरीबन सेम सेम हो, दोनों यंग ग्रुप्स हो या दोनों ओल्ड ग्रुप्स हों, राइट? या जेंडर में 50-50, अगर मेल्स फीमेल्स एक ग्रुप में है तो 50% मेल फीमेल डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे ग्रुप में हो। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन के टाइम पे हमने उसको थोड़ा सा कर लिया।
सेकेंड स्टेज जिस पे हम उसको डील करते हैं वो है एनालिसिस की स्टेज पे। और एनालिसिस की स्टेज पे करते हैं कि ठीक है, आपने जनरली तो मेक श्योर कर लिया कि दोनों में ओल्डर पीपल थे, लेकिन फिर भी मेन एजेस का कुछ तो फर्क होगा। एक जगह 51% और 49% एज डिस्ट्रीब्यूशन थी, एक जगह से 40 और 60% थी। करीब करीब तो है, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो है। और कई चीजें जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मसलन वो जो सब्सिक्वेंटली हमने उनकी डेली प्लेटलेट काउंट्स की, सब्सिक्वेंटली जो हमने उनकी डेली ल्यूकोसाइट काउंट की, वो तो हमें बाद में पता चलेगा। तो वो फैक्टर्स कंफाउंडर्स हैं, उनको अगर हम एक ऐसा स्टेटिस्टिकल टेस्ट मौजूद है जो ये देखता है कि क्या मॉन्टिक्यूलास्ट का अफेक्ट on frequency of DSS is still there when we adjust for these factors, और उनको भी उस मॉडल में डाल दिया जाता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको SPSS पे दिखाऊंगी, बट द आइडिया इज दिस। आई होप द आइडिया इज क्लियर। यस मैडम। जी कमल बताएं। मैडम यहाँ पे मैं ये पूछना चाह रही थी कि थर्ड भी तो एक लेवल है स्ट्रेटिफिकेशन का, तो क्या अगर हम वो स्ट्रेटिफिकेशन करें या हम ये तीनों लेवल्स पे कर लें तो उस सूरत में हम सिंपल टी टेस्ट पे जा सकते हैं, या उस हाँ, सूरत आप में भी अगर हमें स्ट्रेटिफिकेशन करें, लेकिन फिर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब है कि हर ग्रुप में इनफ सैंपल साइज होना चाहिए। ओके तो आपको ओके ओवरऑल सैंपल्स, ताकि वो स्टेटिस्टिकल टेस्ट जो आप उस सब स्ट्रेटम में लगा रहे हो वो इफेक्टिव हो। लेकिन अगर हम वो नहीं कर सकते, और आई एम नॉट अ फैन ऑफ द स्ट्रेटिफिकेशंस, मैं पूरे ग्रुप को लेके चलती हूँ और उसके अंदर फिर बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाने का मुझे ज्यादा लोग स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं आती। एग्जैक्टली। सेकंड चीज हो गई एनालिसिस में। अब ये जब भी हम कोहॉर्ट स्टडी करें या अपने हाथ नीचे करो कमल, या हम करें RCT, हम बेसिकली देखना चाह रहे हैं कि आउटकम अगर डेंजरस है। देखो, आउटकम हम दो तरीके के देख सकते हैं कि कोई ड्रग ट्रीटमेंट, हम ये भी देख सकते हैं कि उससे इंप्रूवमेंट हुई किसी चीज में, या हम देख सकते हैं कि किसी बुरी चीज का रिस्क कम हुआ। इस केस में हम देख रहे हैं कि क्या मॉन्टिक्यूलास्ट रिस्क ऑफ DSS कम करता है कि नहीं। बेसिकली तो ये क्वेश्चन है ना, कि क्या मॉन्टिल्यूकास रिस्क ऑफ डेंगी शॉक सिंड्रोम या हेमरेजिक फीवर कम करता है कि नहीं। तो उसको हम किन साइंटिफिक वर्ड्स में डिस्क्राइब करेंगे? एब्सोल्यूट रिस्क, relative risk, absolute risk reduction, relative risk reduction and numbers needed to treat. इन सब के मैं रिजल्ट्स पे आती हूँ, टेबल्स के ऊपर आपको समझाती हूँ। Additionally, changes in blood white cell count, platelet count, and hematocrit were investigated for significance by repeated measures ANOVA. Spit plot ANOVA was used to determine if the serial measurement of the aforementioned variables differ significantly between treatment and control group. Significance was set at less than 0.05 and data were हाँ analyzed by intention to treat analysis. ये keywords हैं, ये सारे keywords हैं किसी RCT में। तो अब बच्चों, किसी जमाने में दुनिया बहुत मासूम होती थी, आप लोग भी मासूम होते थे। आपको एक एनोवा का ही पता था कि जब 2 ग्रुप हो टी टेस्ट करते हैं, और 3 ग्रुप हो तो या ज्यादा हो तो एनोवा लगता है। अब मैं आपको एक दुनिया की हकीकत में लेके आ रही हूँ कि एनोवा की भी बड़ी टाइप्स है। एक उसमें टाइप है रिपीटेड मेजर्स एनोवा, कि अगर तो आप एक ग्रुप में सिंपली एक वैल्यू ले रहे हो, तो और दूसरे ग्रुप में एक वैल्यू ले रहे हो, तीसरे ग्रुप में एक और वैल्यू ले रहे हो। यस कमल, स्केरी, गुड, आई लाइक दैट यू आर सो इन्वॉल्व्ड। मासूमियत छिन गई आपकी एकेडमिक मासूमियत। तो अगर तो हम ये सिंपली 2-3 ग्रुप्स में कुछ कंपेयर कर रहे हैं ना, वो तो एनोवा हो गया। लेकिन सपोज मैं सीरियल मेजरमेंट्स कर रही हूँ, आप सब के हिमाटोक्रिट पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, थोड़े बहुत चेंजेस तो आएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन तो नहीं बनेगी। लेकिन मैंने ये देखना है कि क्या ये जो थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है कि नहीं। सिग्निफिकेंटली ग्राफ जो है वो कम हो रहा है, इवन दो वो the lines are always zigzag, but is it going up, is it going down, is there significant difference between each day's reading or not time? ये होता है रिपीटेड मेजर्स एनोवा। और अगर अब ये पैटर्न्स 2 ग्रुप्स में कंपेयर कर लो,
कि मॉन्टेलुकास्ट ग्रुप को जो दिया था उसमें सपोज, एक मिनट हुआ, कि जो मॉन्टेलुकास्ट को दिया था उसमें प्लेटलेट पैटर्न सपोज कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है थियोरेटिकली, मुझे नहीं पता इसमें क्या हुआ था, मुझे याद नहीं है। और जो कंट्रोल ग्रुप है जिसमें आपने मॉन्टेलुकास्ट नहीं दिया था उसमें प्लेटलेट पैटर्न रैंडम है। तो दैट इज एन इंटरेस्टिंग रिजल्ट। तो जब आप दो ग्रुप्स में सीरियल मेजरमेंट्स को कंपेयर करते हो, दैट इज स्प्लिट प्लॉट एनोवा, राइट? तो हमने यहाँ पे 3 किस्म के स्टेटिस्टिकल टेस्ट लगाए हैं। मैडम वो मासूमियत के जमाना है मासूमियत में मेरे जहन में ये सवाल होता था कि ये वाला काम हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट से नहीं कर सकते? हाँ, पेयर सैंपल सी टेस्ट में आपको पैटर्न नहीं पता चलता ना। रिपीटेड मेजरमेंट्स का मतलब है कि आपके एक सैंपल के कोई 10-15, कम से कम 5-6 तो डेटा पॉइंट्स होंगे, और वो मतलब व्हाट आई मीन टू से कि पेयर वो रिपीटेड होते हैं ना। सैंपल्स हैं अगर सारे, हाँ, जी बिल्कुल, सारे सारे ग्रुप्स का डे 1, सारे ग्रुप्स का डे 2, सारे ग्रुप्स का डे 3, हाँ मैं क्या बता, ये पेयर्ड सैंपल से नहीं हो सकते? इसका वही आंसर है कि आप टी टेस्ट, मल्टीपल टी टेस्ट क्यों नहीं कर लेते, एनोवा क्यों करते? एरर का चांस बढ़ जाता है। ये बस होता है कि जब आप रिपीटेड टेस्टिंग करते हैं एरर का चांस बढ़ जाता है, जबकि अगर आपको पॉसिबिलिटी हो कि एक ही टेस्ट आप उस डेटा पे लगा सके तो आपका एरर का चांस कम हो जाता है। मजीद मासूमियत गई, बुढ़ापे के बाल आना शुरू हो गए। आरसीटी को 2 तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये तो ऐसा डेटा था ना हमारे पास कि वो हॉस्पिटलाइज पेशेंट है, वो पेशेंट ड्रॉप आउट नहीं हो सकता क्योंकि वो इतनी क्रिटिकल हालत में है। लेकिन सपोज फिर भी कोई पेशेंट, कोई जो मरीज को उठा के ले गए उनके लवाहिकीन, और आपके पेशेंट्स लॉस टू ट्रीटमेंट फॉलो अप हो गए और आपकी कुछ मिसिंग वैल्यूज आ गई। अब इन मिसिंग वैल्यूज को फिल करने के 2 तरीके, या तो उन मिसिंग वैल्यूज वाले सब्जेक्ट्स को आप निकाल दें और रिमेनिंग सब्जेक्ट्स को आप कैलकुलेशंस करें, ठीक है? या जो सब्जेक्ट्स चले गए आप उनको टू बी ऑन द सेफ साइड रिकॉर्ड करें, नो चेंज, नो रिजल्ट, टू बी कंजर्वेटिव इन योर एनालिसिस। अभी तक मेरी बात समझ आई है?